বন্ধুরা, বেনারসের ভোর। আর এই ভোরের বেনারসে চলেছি হচ্ছে এমন একজন মানুষের বাড়ি, অ্যাকচুয়ালি বাড়ি মানে বাড়ি খুঁজতে যাচ্ছি। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন ভারতরত্ন ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ সাহেব। আর এই বিসমিল্লাহ খাঁ সাহেবের কিন্তু আলাদা করে পরিচয়ের কিছু নেই। আর আমার হাতে এই মুহূর্তে একটা চিরকুট দেখতে পাচ্ছ, লেখা রয়েছে হোটেল, হোটেল থেকে সোজা গিয়ে ডান দিকে লবকুশ হোটেল। ব্যাস এইটুকুই সম্বল। আর অন্য কোনো সম্বল নয়। আর এইটুকু সম্বলকে হাতে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি হচ্ছে বিসমিল্লাহ খাঁর সাহেবের বাড়ি খুঁজতে। আর ঠিক যাওয়ার পথে দেখো আমাদের দুপাশে হচ্ছে কিন্তু বেনারস শহরের পুরনো বাড়ি। আর তোমরা অবশ্যই জানো যে বেনারস হচ্ছে ভারতের প্রাচীনতম শহর বা নগর, যাই বলো, বার্ধক্যের বারাণসী। আর বেনারস মানেই হচ্ছে অলি গলি বুড়ি সার, এই নিয়ে কিন্তু আমাদের বেনারস। বিসমিল্লাহ খাঁ সাহেব এমন একজন মানুষ যার সানাই বাজে আমাদের প্রতিটি হিন্দু পরিবারের ঘরের কন্যার বিয়েতে। আর এই হচ্ছে বেনারসের গলি। বেনারস বেড়াতে আসলে ঠিক যেরকম গঙ্গার ঘাট, বেনারসের বিখ্যাত চাট, বেনারসের লস্যি, বেনারসের গলি, বেনারসের সন্ধ্যারতি ঠিক একটা আর একটার পরিপূরক। কোনটা ছেড়ে কোনটা যাব বা কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব, এটাই আসলে চিন্তা করতে করতেই সময় পার হয়ে যায়। আর তার থেকেও বড় কথা, বেনারস মানে তো বাবা বিশ্বনাথ সবসময়ের জন্য রয়েছে। আর ঠিক এই চিন্তা করতে করতে আমরা চলে এসেছি লবকুশ হোটেলের ঠিক সামনেটায়। মানে জাস্ট লবকুশ হোটেল যেটা আমার চিরকুটে লেখা ছিল, তার ঠিক সামনে রয়েছে দাবাং স্টোর। আমি জানি না এই স্টোরে সলমান খান এসেছিল কিনা, বাট এই দাবাং স্টোরের গা দিয়ে এই যে রাস্তাটা চলে গেছে, আপাতত এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাব। মানে ওই চিরকুটে এইরকমই লেখা ছিল বা আমাকে বলা হয়েছে এরকম ভাবে। এগিয়ে গিয়ে দেখা হলো এক ভদ্রলোকের সাথে। से यहाँ से आगे जाइए, आगे से जाके रास्ता एक तो ऐसे घुमा हुआ है, उसी जगह पूछ लीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का घर कौन है, पता लग जाएगा।
दादा आपका बात बोलिए, आप कौन है? बोलिए, आपका परिचय क्या है? सबसे पहले सबको आप नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे। और मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का ग्रैंडसन हूँ और मेरा नाम नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह है। मैं दादाजी के दूसरे नंबर के बेटे का बेटा हूँ। मेरे फादर का नाम नैयर हुसैन था। और ये रूम दादाजी का जो है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि ये रूम कैसा है। इसी रूम में पूरी जिंदगी उन्होंने काटा है। इस में हाँ, इसी रूम में पूरी जिंदगी काटा है। पूरी दुनिया घूमे हैं, अमेरिका, लंदन, पूरा ऑल इंडिया, पूरा दुनिया घूमे हैं। फिर इसी रूम में अपनी ज़िंदगी को लेके वो गुजारते थे। ये उनका छोटा सा कमरा है और इसी में वो नमाज पढ़ते थे, उसी में रियाज करते थे और इसी में आराम करते थे, सोते थे और इसी में खाना खाते थे। और बाकी कभी कोई आ जाए मिलने के लिए तो इसी में हम लोग उनके लिए चटाई बिछा दिया करते थे। और चटाई बिछा के वो जो है सब घंटों बातें हुआ करती थी। दादाजी सबसे घंटों बात किया करते थे। इस तरह से वो उनका दिनचर्या होता था। और जब कभी प्रोग्राम होता था तो फिर प्रोग्राम में भी चले जाते थे। और फिर उसके बाद जो है इसी रूम में हम लोग उनके साथ खेले हैं। सब लोग को पाले हैं, पोसे हैं, सबको बड़ा किए हैं। अपने हाथों के नीचे सबको रखे हुए थे। सब लोग उनके सरपरस्ती में पले हुए हैं, सबको पाले हैं, पोसे हैं और हम लोग को भी पाले हैं। और फिर उसके बाद जो है हम जब बड़े बड़े हो गए तो दादाजी ने हमको अपने ग्रुप में रख लिया, अपने संगत में, अपने पार्टी में रख लिया। क्योंकि वो दादाजी उस टाइम तक कमजोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो हम लोग को अपने साथ हेल्पिंग में रख लिए थे ताकि हम लोग से अच्छा और कोई नहीं उनका सपोर्ट कर सकता था। क्योंकि हम लोग एक एक एक्टिविटी उनकी जानते थे कि दादाजी को कैसे क्या करना है, कैसे क्या चाहिए, उनके मूड के हिसाब से वो क्या चाहते हैं। तो हम लोग को अपने हिसाब से अपने ग्रुप में रख लिया। तो उनके हिसाब से हमने 14 साल पूरा ऑल इंडिया घूमा। और फिर 14 साल में पूरे दुबई, मस्कत, बहरीन, शारजा भी गए हम। दादाजी, हाँ इतनी जगह गए? हाँ, दादाजी हमको लेके गए। दादाजी के साथ? हाँ, दादाजी के साथ। তো বন্ধুরা জাস্ট ইমাজিন করতে পারছো না, আমি একটু বলে রাখি যে আমার গলার অবস্থা বেনারসে এসে খুব খারাপ হয়ে গেছে কাল রাত থেকে। জাস্ট এখন একটু আওয়াজ বেরোচ্ছে আর এটা মনে হয় উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির আশীর্বাদ যে আমার ওনার ঘরে এসে আমার গলা দিয়ে একটু আওয়াজ বেরোচ্ছে। বাট আমার গলা থেকে টোটাল গলা আমার বসে গেছিল। মানে আমি ৫ মিনিট আগেও কথা বলতে পারছিলাম না। বাট এখন মানে সত্যি এটা মিরাকেল যে আমি ওনার ঘরে বসে ওনার নাতির সাথে কথা বলছি, দাদার সাথে কথা বলছি। এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওনা। আচ্ছা দাদা, এই যে এটা উনি কি এখানে বসতেন? हाँ हाँ, ये चारपाई है। तो इसी जगह पे वो रियाज करते थे बैठ के। ইয়াতে हाँ। और বন্ধুরা জাস্ট ইমাজিন করতে পারছো এই যে চার পায়ে যে চকি না কি বলে এটাকে, क्या बोलता है इसको? चारपाई चारपाई। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी बैठ के रियाज करते थे। ये तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ है। और ये चेयर पे जो हम बैठे हैं, ये हाँ। चेयर पे भी दादाजी बैठते थे। इस हाँ चेयर पे? हाँ हाँ। और उनका चेयर देखिए कैसा है, एकदम सिंपल सा चेयर है। और ये भारत रत्न का रूम है, लेकिन भारत रत्न कैसे रहते थे, एकदम सादगी में रहते थे, एकदम सादा पूरा जीवन बिताए हैं वो। বন্ধুরা উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির এই হচ্ছে ঘর। একজন ভারতরত্ন, যাকে শুধু আমরা গর্ব করি না, সারা পৃথিবী গর্ব করে। সেই মানুষটার এই হচ্ছে চার পায়ে খাট। এখানে বসে উনি রেওয়াজ করতেন, এই ঘরে বসে উনি নামাজ পড়তেন। আর একজন ভারতরত্নের চেয়ার দেখো, জাস্ট আমার কাজ করে মানে কিরকম একটা অদ্ভুত ফিল হচ্ছে, যেটা আমি আগেও বললাম যে আমি 10 মিনিট আগে আমার গলা দিয়ে ভয়েস ছিল না, বাট এখন আমি গলা দিয়ে ভয়েস পাচ্ছি। আর একটা জিনিস দেখো, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির নাতি এতটাই মানে মেহমানদারি কাকে বলে, আমি শুধু জল খেতে চেয়েছি, দাদা আমার জন্য কত রকম খাবার দাবার নিয়ে এসেছে। মানে এটা আমার কাছে যে কত বড় পাওনা। আমি ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির ঘরে বসে তার বাড়ির মেহমানদারিতে খাবার নিচ্ছি। বন্ধুরা আমার মনে হয় এটা আমার জীবনের সব থেকে বড় পাওনা, সব থেকে কি বলবো, আমি স্পিচলেস, আমি কথা বলতে পারছি না। বন্ধুরা তোমরা আমার ফিলিংসটা
বুঝতে পারছো না যে আমি কি বলতে চাইছি? কিচ্ছু কিচ্ছু বলার নেই। के लिए हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर अभी रहा है। नहीं हेल्प कर रहा है, अभी तक तो नहीं किया है कि मतलब उनका घर को उनके। भाई इसमें तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट एक दो बार बोला है न्यूज में, लेकिन अभी उसके ऊपर ढंग से ध्यान नहीं दे रहा है अभी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये गवर्नमेंट टेक ओवर करेगा। जी आप जी लोग टेक ओवर क्यों करेंगे? बिल्कुल। ये देश का प्रॉपर्टी है, हाँ इसका हाँ पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका घर, सही बात है। क्योंकि आपका हो सके तो सर बिस्मिल्लाह खान जी आप लोग का दादाजी है, जी जी जी, पर वो सिर्फ आप लोग का नहीं, वो हम सबका सबका है। है, सबका, बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल। रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को जाता है, हाँ आप हाँ लोगों को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, उसका इंस्ट्रूमेंट कुछ है, कुछ बजाते थे? हाँ, वो शहनाई बजाते थे। वो शहनाई, एक शहनाई तो एक शहनाई जो मेरे दादाजी का था वो म्यूजियम में चला गया, हम आपको दिखाते हैं, फोटो में, एल्बम में है। और एक शहनाई जो दादाजी का था, वो शहनाई दादाजी अपना रियाज किया बहुत साल तक, फिर उसको, हाँ, वो शहनाई मेरे बाबा को दे दिया। अच्छा, वो शहनाई मेरे बाबा, दादाजी का शहनाई मेरे बाबा को मिल गया। वो शहनाई मेरे बाबा पूरे जिंदगी भर बजाए, तो वो शहनाई मेरे पास है, हम आपको दे। आपका पास है? हाँ, हम और उसी शहनाई को हम रियाज करता है। उसे तो हाँ हमें तो सुनना है वो आवाज। तो हाँ, आवाज तो हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी रोजा चल रहा है ना, ओ, तो रोजा में थोड़ा सा हम लोग शाम को, हाँ, अगर आप शाम को आते तो शाम को हम आपको सुना देते। अभी हम लोग का रोजा चल रहा है। अच्छा, ओके, ओके। रोजा में आप लोग नहीं, बजाते हाँ, नहीं नहीं ना? बजाते तो नहीं है, मतलब शहनाई तो, लेकिन हाँ हमको गा के हम कुछ सुना देंगे आपको हम। सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट नहीं नहीं, हम बोलना। आप लोग के रोजा में कुछ ऐसे कुछ नियम है कि रोजा में आप लोग शहनाई नहीं बजाते, ऐसा कुछ है? नहीं, नियम तो ये अब ये अपने अंदर की क्लिक बात है। करता हूँ। नहीं, रोजा जो है वो रोजा से डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब। अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके, ओके, नहीं, तो डिस्टर्ब ये करने का रोजा कोई हम जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा गा के सुना देंगे। हाँ, दादाजी के साथ जो हम 14 साल थे, 14 साल में उनका बहुत सा प्रोग्राम हुआ, और दुबई, मस्कट, बहरैन, शारजा, ये सब हम गए, उनके बड़े बड़े यादगार प्रोग्राम हुए, और इंडिया में भी बहुत यादगार प्रोग्राम हुए। तो उसमें दादाजी मतलब राग बजाते थे, चैती है, ठुमरी है, धुन है, पहाड़ी धुन है, कजरी है, ये सब बजाते थे। उसमें एक तो गजल भी बजाते थे। तो गजल हर जगह नहीं बजाते थे, जब देखते थे कि बहुत बड़ा माहौल है, बहुत ऑडियंस है, हाँ ऑडियंस है, जब उनका मूड हो रहा था कि अब मूड हो रहा है कि अब थोड़ा यहाँ पे तो गजल भी एक तो होना चाहिए, तो वो गजल दादाजी बजाते थे, और पब्लिक झूम जाती थी, पूरा हॉल तालियों से गूंज जाता था। तो वो गजल की 2 लाइन है, हम आपको वो गजल सुना देंगे। इंस्ट्रूमेंट देखता है। हाँ, पहले हम इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, आप थोड़ा, हाँ। हम तो जब तक नसीब राह थे, नज़ारगी बनी रही, जब तक नसीब राह थे, नज़ारगी बनी रही, वो दूर थे तो বন্ধুরা এবার দেখো যে জিনিসটা আমি এবার দেখাতে যাচ্ছি, জাস্ট আমি চিন্তা করতে পারছি না সেই জিনিসটা আমার হাতের সামনে। উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির সানাই, চিন্তা করতে পারছো সেটা আজকে তুষারের হাতে। মানে আমার মনে হচ্ছে আমি মানে মা সরস্বতী যার সাথে ছিলেন আজকে তার ঘরে বসে রয়েছি, আর তার মানে জাস্ট আমার টাচ করে কিরকম অদ্ভুত লাগছে। ওনার 2টো সানাই ছিল দাদা, একটো সানাই म्यूजियम में है। म्यूजियम में ये मेरे बाबा का शहनाई है, अच्छा, और दादाजी कई शहनाई अपने जीवन में 10-12 शहनाई हाँ हाँ बिल्कुल चेंज चेंज किया, किया। तो वो मतलब वो सब शहनाई किसी को अपने शागिर्द को दे दिया, दे दिया, इसको दे दिया, बस इसको भी वो यूज करते। ये तो बहुत संभाल के रखे, ये मतलब 70-80 साल का ये शहनाई है, इतना पुराना शहनाई है। शहनाई जितना पुराना होता है उसमें उतना वो सुर आता है। अच्छा अच्छा, हाँ,
ये सनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का 70-80 साल का पुराना सनाई है। आई जस्ट दादाजी का एक गजल हम सुनाते हैं, जो कि दादाजी बहुत खास खास जगह पे बजाते थे। उसकी 2 लाइन हमको याद है, तो हम वो 2 लाइन आपको सुनाएंगे। और ये हमारे भैया जी कलकत्ता से आए हुए हैं, तो उनके मेरे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है दादाजी। जब तक नसीब राह थे, नज़ारगी बनी रही। जब तक नसीब राह थे, नज़ारगी बनी रही। वो दूर थे तो दीद की हसरत थी बेकरार। वो दूर थे तो दीद की हसरत थी बेकरार। और वो सामने रहे तो नजर कांपती रही। और वो सामने रहे तो नजर कांपती रही। जब तक नसीब राह थे, नज़ारगी बनी रही। बाल ठाकरे जी, बाल ठाकरे जी के घर में दादाजी जी गए थे बॉम्बे में, अच्छा तो उनके लड़के उदय ठाकरे और इधर हम बच्चन हैं, हाँ और बच्चन उस जी। साइड में हम हैं। ये उनके मतलब सेक्रेटरी हैं। अच्छा बच्चन साहब जी जी। जी जी जी। और ये भी मेरे अमिताभ साहब आए हैं। ये मेरे चाचा प्रोग्राम का हाँ प्रोग्राम का है। ये दादाजी चाचा जी हैं, ये दादाजी मेरे बाबा, ये मेरे चाचा जी हैं। ग्रुप में प्रोग्राम का है। जी जी जी। और ये दुबई का फोटो है, दादाजी दुबई के रूम में बैठे हुए हैं। दादाजी का लास्ट टाइम का फोटो है। ओ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 वह बहुत रेयर पिक्चर है ये जी जी। उसका इसका लास्ट फोटो टाइम मिलेगा नहीं कहीं भी। ये कहीं। हाँ हाँ, वही तो ये लास्ट टाइम का फोटो है ये। बिल्कुल लास्ट ये साइड में हम हैं, और ये मेरे ताऊ जी, ये सब चाचा लोग हैं। लास्ट टाइम का जी पिक्चर जी। है। ये दादाजी की शहनाई हम यहाँ पे हैं, और ये मोदी जी हैं। ये दादाजी की शहनाई संग्रहालय में रखी गई है, म्यूजियम में। अच्छा ये अच्छा मोदी जी अपने हाथों से शहनाई को रख रहे हैं। ये अच्छा अच्छा। जो বন্ধুরা দেখো মোদিজি উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির সানাই নিজের হাতে মিউজিয়ামে রাখছে, या আর দাদা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোদিজি। মানে আমি বলেছিলাম না যে বিসমিল্লাহ খানজির দুটো সানাই এখন রয়েছে, একটা যেটা ঘরে রয়েছে আমার পাশে রাখা রয়েছে, আর একটা মোদিজি মিউজিয়ামে সানাইটা রেখে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা বন্ধুরা। তাহলে তুষার টক্সের তুষারের মিউজিক্যাল জার্নি এখানেই শেষ। মানে এর কোনো শেষ হয় না, মানে এটা জীবনের একটা পরম পাওয়া। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজির বাড়িতে, তার ঘরে এতটা সময় কাটিয়ে যাওয়া। বন্ধুরা আজকে আর কিছু বলবো না, ব্লগটা এখানেই শেষ করবো। প্রত্যেকে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানজি আমাদের হৃদয়ে আছেন, সারা জীবন থাকবেন।